अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियोफेज लाइफ साइकिल। बैक्टीरियोफेज इसकी स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्टली इट इज़ कंपोज्ड ऑफ हेड एंड टेल। हेड इज कंपोज्ड ऑफ कोर प्रोटीन which is known as capsid and DNA core. Nucleic acid core, either it is DNA or RNA virus, but in case of bacteriophage, it is DNA. Tail is made up of sheath, and sheath also has tail fibers on its lateral end. So this is the bacteriophage. ये हम जो हमारा कोर्स है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स उसका थर्ड लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं। What are bacteriophages? Bacteriophages are viruses which attack on bacteria. These are the members of subphylum Deoxyvira. Two types of life cycles are found in bacteriophages: lytic cycle and lysogenic cycle. Lytic cycle. Lytic cycle is named for the process of lysis. Lysis means burst होना, or which occur when a virus has infected a bacterial cell, replicated new viral particles, and burst through the cell membrane. This releases new virions so they can infect more cells. Lytic cycle is completed in the following 5 stages. Attachment, first one stage. Entry into the bacterial cell. Multiplication within bacterial cell by using the host biosynthetic machinery. Assembly, by which different parts of bacteriophages assemble together and complete virion is to be produced. And final last are the lysis, by which bacteria are burst and many viruses are liberated. First stage, attachment. Bacteriophage attaches itself on the cell wall of bacteria through tail fibers while recognizing the specific site and bacteria called as receptor site. यानी हर जगह से बैक्टीरिया के जो है वॉल से वो बैक्टीरियोफेज इंटर नहीं हो सकता, बल्कि एक स्पेसिफिक साइट होती है जो कि रिसेप्टर साइट कहलाती है. केमिकल यूनियन इज फॉर्म बिटवीन बैक्टीरियोफेज एंड रिसेप्टर साइट ऑफ बैक्टीरिया. Entry. In this step, bacteriophage inserts its DNA into the bacteria. It attaches its basal plate at bacterial surface. It releases lysozyme enzymes that causes the resolved portion of bacterial cell wall. यानी जहाँ से अटैचमेंट रिसेप्टर साइट होती है वहीं से जो है बैक्टीरियोफेज अपने मखसूस किस्म के एंजाइम जिनका नाम है लाइसोजाइम वो एंटर करता है. जो लाइसोजाइम जो है वो बैक्टीरियल वॉल जो होती है उसको डिसॉल्व कर देते हैं, वहाँ से एक बोर कर देते हैं, सुराख पैदा कर देते हैं. देन व्हाई द कंट्रैक्शन ऑफ बैक्टीरियल शीट काजेस एंट्री ऑफ डीएनए कोर इनटू बैक्टीरियल सेल. देन बैक्टीरियल डीएनए जो है वो एक इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है बैक्टीरियल सेल में. देन फेज डीएनए इंसर्टेड इनटू बैक्टीरियल जीनोम. दिस इज द होल बैक्टीरियल life cycle, bacteriophage life cycle. This is the lytic cycle and this is the lysogenic cycle. First one is the lytic cycle, by which lysis of the bacteria takes place. First stage, by which bacteriophage enter into the attaches to the. This is the first stage. Phage attaches to host cell and injects its DNA. This is the red portion is the bacteriophage DNA and this blue portion is the bacterial chromosome. The viral genome enter into the bacterial cell by injecting it from the bacteriophage sheath. Then second phage DNA circularizes and enter in lytic cycle and lysogenic cycle. Then जो है यदि अपनी इसमें जो है वो बायोसिंथेटिक मशीनरी भी कंट्रोल ओवर करता है. कंट्रोल ओवर करने के बाद उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज करते हुए अपने वायरल पार्टिकल्स यानी हेड, टेल और जो वायरल डीएनए होता है उसको प्रोड्यूस करता है. देन असेंबली भी हो जाती है. असेंबली मीन यानी पैकिंग ऑफ डीएनए इनटू द वायरल हेड and
tail and head are attached together. This is the assembly. Assembly mean यानी in this case जो parts हैं मुख्तलिफ उनको जोड़ के पूरा वायरस बनाना, इसको हम assembly कहते हैं। असेंबली के बाद यानी वायरस जहाँ पे बहुत ज़्यादा तकरीबन 200 से 300 जो है वो वायरसेस हो जाते हैं, जिससे जो वाल होती है उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है और वाल जो होती है मटीरियल वाल कमज़ोर हो जाती है और एक कमज़ोर वाले हिस्से से जो उसकी बस्टिंग हो जाती है। बस्टिंग जिससे उसके जो वायरल पार्टिकल जो होते हैं वो रिलीज होके देन दे आर रेडी टू अटैक अदर बैक्टीरिया। दिस इज द लाइटिंग साइकिल। Multiplication. In this step, viral DNA takes control of bacterial genome and directs the cell to synthesize the viral proteins and viral DNA. यानी ऑलरेडी भी बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो वर्क कर रहा था, वो अपनी प्रोटीन बना रहे थे, लेकिन वायरल डीएनए क्या करेगा, उसकी डीएनए पे बैक्टीरियल डीएनए पे जब जाके अटैच होगा तो उसको कंट्रोल ओवर कर लेगा, उस पर अपना कब्जा जमा लेगा। कब्जा जमा लेने के बाद उसको अपने मुताबिक चलाएगा। यानी जो बैक्टीरिया की बैक्टीरियल प्रोटीन्स हैं उनकी सेंसेस तो बंद हो जाएगी, लेकिन वायरल प्रोटीन जो है, वायरल डिफरेंट पार्टिकल्स जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें मेन जो है वो 3 पार्ट बनते हैं। हेड ऑफ द यानी कैप्सूल ऑफ द वायरस, second one is sheath of the virus, third one is the nucleic acid core of the virus. Many components of virus are formed within cell of the host bacteria. Assembly. अब ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, बैक्टीरियल हेड यानी कैप्सिड, न्यूक्लिक एसिड कोर एंड शीथ ऑफ द बैक्टीरियोफेज, जी ऐसे इनको जोड़ा जाएगा और कंप्लीट वायरस बनाया जाएगा। देन कंप्लीट कंपोनेंट्स ऑफ वायरस असेंबल टू फॉर्म कंप्लीट विरियन। विरियन मीन कंप्लीट वायरस। लाइसिस। अब जबकि प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा वाल पे, बैक्टीरियल वाल पे, तो ये बस्ट हो जाएगी। लास्ट स्टेप ऑफ लाइटिंग साइकिल इज लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया। Viruses within bacteria 200 to 300 cause pressure on bacterial cell wall by which lysis occur. Viruses then release ready to infect the new host. Bacteriophage that undergo the lytic cycle. Lytic life cycle is also named as virulent phage because they are virulent. They are attacking. They cause harm of the bacterial cell. Lysogenic cycle. Second one cycle also observed in the life history of bacteriophage is the lysogenic cycle. In this case of lysogenic cycle, the virus after getting entry into bacterial cell does not direct the bacteria to synthesize viral components. Viral component प्रोड्यूस नहीं होते, यानी कि कंट्रोल ओवर नहीं करता, बल्कि उसके साथ पुरअमन मकासद से जो है वो रहता है। Instead, viral DNA integrated into bacterial chromosome and is called prophage. अब बैक्टीरियल डीएनए है, जब उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा वायरल डीएनए तो उसको क्या कहा जाएगा, प्रोफेज। प्रोफेज कैन बी पास ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बैक्टीरिया। इट मीनिंग दैट कि जब बैक्टीरिया जो है वो नॉर्मली उसकी जब रिप्रोडक्शन होगी, उसकी जब सेंसेस होगी, न्यू बैक्टीरिया बनेंगे, बाइनरी फिशन होगी। आप जानते हैं बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन होती है, तो इस वायरल डीएनए का पार्ट भी उसकी हर नस्ल तक पहुंचता जाएगा। Sometime, यानी ये बात, prophage can be passed on to next generation of bacteria. Sometime prophage can get separated. अब viral DNA क्या कर, जिसको हम prophage का नाम दिया, वो separate हो जाएगा from bacterial chromosome and initiate the lytic cycle again. यानी फिर वो एक्टिव हो जाएगा और किसी भी स्टेज पर फिर दोबारा जो है वो लाइटिक साइकिल को स्टार्ट कर सकता है। दिस स्टेप इज कॉल्ड इंडक्शन। यानी पहले तो उसके साथ प्रोफेज के तौर पर रहा और उसकी नेक्स्ट जनरेशन में पास भी हुआ, पूरा मन तरीके से रहा, लेकिन फिर किसी वजह से इसके जो है ना वजूह डिफरेंट है कि लाइटिक साइकिल फिर दोबारा स्टार्ट हो जाता है। उसमें वेदर कंडीशन है जो है वो फेवरेट कंडीशंस पे डिपेंड करता है, तो केमिकल्स पे डिपेंड करता है। दिस स्टेप इज आल्सो कॉल्ड इंडक्शन। जब दोबारा उसका एक्टिव हो जाना, उससे सेपरेट होकर दोबारा उसको कंट्रोल ओवर करना, दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। This is called induction. Bacteriophage undergoing lysogenic cycle is called temperate phage or lysogenic phage. This is the diagram of lysogenic cycle. आप जानते हैं कि जहाँ पे जो है बैक्टीरियल डीएनए जो है वो मौजूद है और वायरल डीएनए इंटर हो गया। अब इसके बाद तीसरा जो डायग्राम है वो ये है लाइसोजेनिक साइकिल की, इधर चलेगी, लाइटिक साइकिल की इधर है।
तो इसमें ये आपको जो रेड पोर्शन नजर आ रहा है ये प्रोफेज है यानी वायरल डीएनए है, और जो ब्लू पोर्शन नजर आ रहा है वो बैक्टीरियल डीएनए है। बैक्टीरियल डीएनए और वायरल डीएनए आपस में पुरअमन तरीके से रह रहे हैं, और अगली नस्ल में बाइनरी फ्यूजन में जब इसकी रिवीजन हो रही है तो हर नस्ल में पहुंचता जा रहा है। तो ये तो है लाइसोजेनिक साइकिल, बट किसी भी स्टेज पर दोबारा ये लाइटिक साइकिल जो है वो स्टार्ट हो सकता है। थैंक यू।